The big focus here on First Up amidst reports that controversial film Messenger of God featuring Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh has been cleared by the Film Certification Tribunal. The censor board chief Leela Samson has decided to put in her papers. Leela Samson said, and I quote, "It is a mockery of Central Board of Film Certification. My resignation is final, have informed the INB secretary," unquote. Reports suggest that the written approval from the Film Certification Tribunal is still awaited. Meanwhile, there were flag marches in Punjab's Bhatinda before the controversial movie's release. And Leela Samson also spoke to Headlines Today. In a letter, she has told us that she has resigned as censor board chief. The resignation is over interference, coercion, as well as corruption. She says that the ministry is interfering in the CBFC's working. Leela Samson told Headlines Today, and I quote, "The reasons cited are interference, coercion and corruption of panel members and officers of the organization who are appointed by the ministry and having to manage an organization whose board has not met for over 9 months as the ministry had no funds to permit the meeting of members." All right, Rohit Khilnani, our entertainment editor, is on the phone line with us. Rohit, what's this latest point about where she says that the board has not met over 9 months as the ministry had no funds to permit the meeting of members? It almost gives us a sense that it could not just be about the Messenger of God movie. It's got something more to do with the functioning of the censor board. Absolutely, she expresses her displeasure in the way the government is functioning. This whole department, completely overlooking at a lot of things. We know that some censor board members, their term was over 2 years ago, but every 3 months and 6 months they keep getting renewal and new ID cards, which are just valid for 3 to 6 months. So that's the way of functioning. She clearly says that the new government failed to appoint a new censor board and chairperson. But also, coming to the tribunal now, she's obviously resigned. Okay, Rohit, please do stay on the phone line with us. I'm joined in by Mr. Santosh Insan, who's the spokesperson of Dera Sacha Sauda. Mr. Insan, can you hear me? Yes, Santosh Gautam Insha. Santosh Gautam ji, if you could tell me whether you have got the permission for the for the release of this movie or not. बिल्कुल मिल गया है जी, रात को मिल गया है, देर रात। क्या आपको पता है कि इस मूवी के परमिशन मिलने के बाद जो सेंसर बोर्ड की जो चीफ है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, सुन पा रहा हूँ। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, ये मानवता की भलाई के लिए जो गुरुजी का जो फिल्म है, शिक्षाप्रद फिल्म है, और जो आपने वोटिंग भी कराया था उसमें 95%, 94.9% लोगों का परसेप्शन ये था कि ये फिल्म शिक्षाप्रद फिल्म है, ये जरूर रिलीज होना चाहिए। संतोष जी, बहुत सारे आरोप लगे हैं डेरा सच्चा सौदा पर और जो प्रोड्यूसर्स हैं इस मूवी पर सेंसर बोर्ड के द्वारा आरोप लगे हैं। मैं एक एक करके वो आरोप बताता हूं, आप उस पर अपना बताइए कि आपके डेरा सच्चा सौदा का उस पर क्या कहना है। पहला आरोप कि जब 2 बार ये फिल्म रिजेक्ट हो चुकी थी सेंसर बोर्ड से, तो तीसरी बार प्रेशर डाला गया और बहुत जल्दी ट्राइब्यूनल की मीटिंग बिठाई गई, तो कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी प्रेशर्स थे। नहीं, ये आम आदमी की भावनाएं थी, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था किसी भी तरह का। ये पब्लिक का जनता की हार्दिक इच्छा थी, हमारा कोई इसमें प्रेशर नहीं था, हमारा कोई इसमें किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं था। संतोष जी, आप पर दूसरा आरोप है कि सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस लेने से पहले ही आपने मूवी की डेट तय कर दी। 16 जनवरी आपने अपने आप ही डेट डिक्लेयर कर दी, जबकि अभी तक सेंसर बोर्ड ने उसको क्लियर भी नहीं किया था। देखिए, मानवता की भलाई के लिए जो भी हमारे गुरुजी ने काम किए हैं, उनका उतना भरोसा रहा है और रहेगा कि वो कभी भी उसमें कभी भी नाकामयाब नहीं होते हैं। और वो उस तरह का हमें पूरा भरोसा था कि हमारी फिल्म को, क्योंकि ये पूरी टोटली तरह से शिक्षाप्रद फिल्म है। और आज जबकि सेंसर बोर्ड एक तरफ कितने अश्लील पिक्चर, सारे दिन गाने बजते हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाता, जबकि ये टोटली शिक्षाप्रद फिल्म है और इस पर कैसे रोक लग सकती है? संतोष इंसान जी, जो तीसरा आरोप है, मैं एक एक करके आपसे सारे आरोप पूछ रहा हूं। तीसरा आरोप यह है कि सेंसर बोर्ड की जो पहली 2 मीटिंग्स हुई थी उसमें यह नतीजा निकला था कि कुछ अंधविश्वासी टाइप सीन है इसमें।
जो कि पसंद नहीं आ रहे सेंसर बोर्ड को, क्योंकि जो उनका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है उसमें ये चीज फिट नहीं होती। आप अंधविश्वास फैला रहे हैं इस फिल्म के द्वारा। इस तरह ये उनका आरोप बिल्कुल मैं इसको सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे पहले भी जो फिल्में आई हैं, अभी चाहे पीके था उसमें शंकर जी का मजाक उड़ाया गया था, और कई धार्मिक संस्थाओं को लेके भी ओ माई गॉड OMG फिल्म थी, उसमें भी मुसलमान लोगों का जो कई बार वो हुआ था अनादर, उसमें सेंसर बोर्ड कहाँ था? क्या उनको वो चीजें नहीं देखी गई? जब इसमें हम नशा के विरोध में, वेश्यावृत्ति के विरोध में काफी सारी चीजें शिक्षा दे रहे हैं हमारे गुरुजी, जबकि सारे दिन ऐसे गाने फिल्मों के बजते हैं, अश्लील फिल्मों के, जिससे हमारी जो संगत है, बच्चे हैं, वो खराब होते हैं। क्या ये सही है सेंसर बोर्ड की तरफ से? संतोष इंसान जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, भटिंडा में बहुत सारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस की टुकड़ियां तैनात हो गई हैं वहां पर, ये आपको पता था? एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसी क्रिएट हो रही है, उसके बावजूद इस फिल्म का रिलीज के लिए आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता है कि इस पे प्रदर्शन हो रहे हैं? कई चीजें राजनीति से प्रेरित है जी। इसमें जो मानवता है, जो जनता है, उनसे प्रेरणा नहीं है, इसमें ये राजनीति से प्रेरित है जी। जो विरोधी लोग हैं उनका ज्यादा प्रोपेगेंडा है। मैं अपना पहला सवाल, संतोष गौतम जी, Santosh, Mr. Insan, I am repeating my first question again because I don't think I have got a pointed answer from you. You have been accused of putting pressure on members of the censor board. नहीं, हमने किसी के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं डाला जी, हमारी तो मुलाकात You have been accused by the censor board chief, by members of the panel of the censor board. नहीं, ये मानवता का प्रेशर उनके ऊपर हो सकता है जी, लोगों का प्रेशर। आपके चैनल द्वारा जो सर्वे कराया गया, 95% लोगों की भावना अपने आप जताता है जी। आपका अपना चैनल से जो आज तक का जो वो है, उसमें 95% लोगों ने कहा कि जो सेंसर बोर्ड ने जो रोक लगाई है वो बिल्कुल गलत है। तो इसमें हम बिल्कुल भी कहीं पे भी दोषी नहीं पाते अपने आप। अच्छा संतोष इंसान जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप 2 मिनट रुकिए। हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर रोहित खिलनानी बॉम्बे से, मुंबई से आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। रोहित, प्लीज गो अहेड। संतोष जी, मेरे 2 सवाल है। क्या आपको सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है या वर्बली आपको कहा गया कि आप फिल्म रिलीज कर सकते हैं? क्योंकि थिएटर में तो फिल्म तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक एक सेंसर सर्टिफिकेट होगा नहीं। और दूसरा सवाल सर ये है, आपको क्या पता है कि ये ट्राइब्यूनल में किसने फिल्म देखी है? दोबारा सुनना चाहूंगा जी, थोड़ा मिस ब्रेक हो गया है आवाज। सर एक चीज, क्या आपको सेंसर सर्टिफिकेट, आप कह रहे हैं कि फिल्म आज रिलीज होगी, क्या आपके हाथ में सर्टिफिकेट आया है? क्योंकि सर्टिफिकेट के बिना तो फिल्म रिलीज हो नहीं सकती, या आपको वर्बली कहा गया है कि आप जाके फिल्म रिलीज कर दीजिए? नहीं, हमें सर्टिफिकेशन मिल गया है। आपको सर्टिफिकेशन मिल गया है क्या? क्योंकि सर्टिफिकेट सारे थिएटर्स में पहुंचेगा तो ये फिल्म रिलीज हो सकेगी। हाँ बिल्कुल, देर रात हमें ये हो गया है जी। अच्छा, एक और सवाल, क्या आपको पता है ट्राइब्यूनल में किसने ये फिल्म देखी? कौन मौजूद था वहां पर? हम देखिए ट्राइब्यूनल तक नहीं गए हैं, ना हमारा कोई प्रतिनिधि गया है। ये आम जनता की भावना है, जिसके बेस पर ट्राइब्यूनल ने या सेंसर ने फैसला लिया है। क्योंकि आपके चैनल ने खुद एक सर्वे किया था, 2 दिन से चल रहा था, उसमें मोर देन 95% लोगों की भावनाएं यही जुड़ी हुई थी कि नहीं, इस फिल्म पर सेंसर ने जो रोक लगाई है वो बिल्कुल गलत है। थैंक यू। Okay, Santosh Insan, thank you very much for joining us. The Dera Sacha Sauda spokesperson clarifying the version of Baba Gurmeet Ram Rahim Singh Insan as far as this movie's release is concerned. Remember, this Friday morning, there's a huge controversy that has, completely blown in our face, and that is the censor board chief deciding to quit over what she says is interference by the government as far as the release of movies is concerned. She feels that there is coercion, there is corruption, and that needs to be looked into. The government is not dealing or not maintaining the autonomy of the institution of the censor board. We will stay on top of this particular story, but I believe there is some more breaking news coming in related to this story.